So hello everyone. Today we will be talking on the topic agriculture. Now moving forward, we will see what are agricultural practices. So agriculture is a practice of cultivating plants and livestock. Agriculture was the key development in the rise of human civilization. It is the primary activity which produces most of the food that we consume. Food includes cereals, vegetables, fruits, oils. The major agricultural products can be broadly grouped into foods, fibers, fuels, and raw materials. Raw in category of raw materials, we have rubber. Like for example, rubber. Over one third of the world's workers are employed in agriculture. Second only to the service sector, i.e., secondary sector. So basically, what are agriculture practices? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो होती हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक। मतलब एग्रीकल्चर बेसिकली जो होता है वो हमारी जो फूड की जो बेसिक नीड है उसको, हमारी फूड की नीड्स को, हमारे कपड़े, हमारे लिए फ्यूल, इन सब की नीड्स को प्रोवाइड करते हैं। जो प्रैक्टिसेस उन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं कहते हैं। बेसिकली जो दुनिया की जो वन थर्ड पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है। उनके अलावा जो जो बाकी सेक्टर्स हैं वो हैं सर्विस सेक्टर्स एंड different other sectors. Now moving forward, we will see what are the types of farming. So basically the first type of farming is primitive substance farming. So basically this type of farming is practiced on small patches of lands which the help of primitive tools like hoe, digging sticks, family community labor. Now, this farming basically depends upon monsoon, natural fertility of soil, sustainability of environment, conditions of the crop, and without the use of fertilizers. So basically जो primitive type की जो farming होती है वो basically जो farmers होते हैं, जो small farmers होते हैं, उनके द्वारा छोटी जगहों, छोटे लैंड के जो पैचेस होते हैं उन पर यूज करी जाती है। वो बेसिकली अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। और इस टाइप की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड फूड क्रॉप। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द सॉइल। सो बेसिकली स्लैश एंड बर्न में क्या करते हैं कि फसल काटने के बाद जो बचे हुए जो भी पार्ट्स रहते हैं फसल के उसे बर्न कर दिया जाता है, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है बेसिकली। And it has been known by various other names like Jamming in the northeast state, Ray in Vietnam, Bivar in Madhya Pradesh, Hail in Himalayan belt. Now moving forward, the second type of farming is intensive subsistence farming. So this type of farming is practiced in the areas of high population, pressure on land. In the labor-intensive farming, where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production, it is practiced mainly in developed countries. So जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो बेसिकली जो होती है लार्ज एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उन जगहों पर ये फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। इस फार्मिंग में बेसिकली बायोलॉजिकल इनपुट्स भी यूज़ करे जाते हैं। इरिगेशन प्रोसेसेस, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के इरिगेशन प्रोसेसेस भी यूज़ करे जाते हैं फॉर हायर प्रोडक्शन। सो नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड, the third type of farming is communal farming. So, main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, high yielding variety of seeds, chemical fertilizer, insecticides, pesticides, in order to obtain higher productivity. Example, plantation is a type of commercial farming. Single crop is grown on a piece of land, uses capital intensive inputs, migrant labor, etc. So, and this type of farming basically includes rubber, tea, coffee, sugarcane, and etc. Production is mainly for market requirement network of transport and communication. So जो commercial type की जो farming होती है वो basically जो होती है
वो आपके जो मार्केट में जो नीड होती है, जो मार्केट के लिए जो फार्मिंग की जाती है, ये वो फार्मिंग होती है बेसिकली। इसका मेन रीजन ये होता है कि ये मार्केट में सामान सप्लाई करने के लिए की जाती है। इसकी वजह से इसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज करे जाते हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स यूज करी जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मार्केट में ट्रांसफर किया जाए। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर, टी, कॉफी, शुगर केन। Now, moving forward, we will talk about what are the cropping patterns in India. So, India has mainly three kinds of cropping pattern, which are based on season. That are Rabi, Kharif, and Zaid. So, now let us discuss about what is Rabi. So, Rabi are basically grown in winters from October to December and harvested in summer from April to June. Important crop includes wheat, barley, peas, gram, and mustard. Area of cropping includes Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttar Pradesh. Availability of perception during winter months helps in success of the crop. सो बेसिकली ये राबी जो फार्मिंग होती है बेसिकली विंटर सीजन में करी जाती है, अक्टूबर से दिसंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल से जून के टाइम में हो जाती है। इसमें बेसिकली जो फार्मिंग की जाती है वो है व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड। किन एरियाज में की जाती है ये? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में ये फार्मिंग ज़्यादा की जाती है। और ये फार्मिंग, ये जो क्रॉप्स हैं ये इसी टाइम में इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि जो कंडीशन होती है विंटर्स की वो इन क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। Now on moving forward, we'll talk about what are kharif crops. So basically kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the countries and are harvested in the September and October. Important crops which are grown during this season is paddy, maize, jowar, jute, cotton, groundnut. The most important growing regions basically of this cropping are Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. In between Rabi and Kharif season, there is a short season during summer known as Zaid. So, on like the Kharif crops are basically grown on the onset of monsoon. जब monsoon आने वाला होता है उस टाइम पे इन क्रॉप्स की बेसिकली ये क्रॉप्स उस टाइम पे ग्रोन किए जाते हैं। ये जो क्रॉप्स होते हैं इनमें कुछ एग्जांपल हैं इन क्रॉप्स के: पैडी, मेज, ज्वार, जूट, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें। इनके सब जो जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो है असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पर जो है रेनी सीजन काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है, क्योंकि मानसून जो सबसे पहले हिट करता है वो इन्हीं कोस्टल एरियाज को हिट करता है। इस वजह से इस टाइप की फार्मिंग यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर होती है। सो नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड, what is Zaid, the crop, what is Zaid crop? So basically जो Zaid crop होते हैं वो राबी और खरीफ सीजन के जो बीच में एक शॉर्ट सीजन होता है समर का, उससे वो Zaid क्रॉप्स के लिए सीजन होता है। दिस क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, फॉर्डन क्रॉप्स एक्सेट्रा। बेसिकली Zaid जो क्रॉप्स, जो Zaid क्रॉपिंग पैटर्न का जो Zaid टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली गर्मियों के टाइम पे मतलब उगाए जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग में जो आए हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सो सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लाइक जब से हम लोग रिपब्लिक, जब से हम लोग आज़ाद हुए उस टाइम के बाद से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको कहीं उस तक मतलब सस्टेन कर दिया गया है, मतलब उसको थोड़ा सा कंसाइज कर दिया गया कि आप इतनी ही लैंड को यूज़ कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो उसका पेस थोड़ा कम हो गया है। Therefore, for instance, agriculture needs some serious technical and institutional reform. Thus, collectivization of consolidation of holdings, corporation and abolition of zamindar were given priority to bring reforms. Green revolution, white revolution were some strategies that were initiated. Introduction of Grameen banks, cooperative societies for providing loans at lower rates of interest. Schemes such as Kisan Credit Card, accidental insurance schemes were introduced by Government of India. So basically इस हिंड्रेंस को कम करने के लिए, एग्रीकल्चर को और बढ़ावा देने के लिए
गवर्नमेंट ने कई तरीके की स्कीम्स लाई, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, उसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई ताकि हम जो अच्छी वैरायटी की सीड्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको मतलब उनका यूज़ करके अपनी जो फार्मिंग है उसको बढ़ा सकें। वाइट रिवॉल्यूशन मतलब जो डेयरी फार्मिंग है हमारी उसको बढ़ाने के लिए वाइट रिवॉल्यूशन लाए, और जमींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश करने का एक रिफॉर्म लाए, तो जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, तो जिससे हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस हैं उनको हम इंक्रीज कर सकें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर. So, globalization in particular, after 1990, farmers in India have been exposed to new challenges and not been able to cooperate with the developed countries. So, हम 1990 के बाद जो इंडियन फार्मर्स थे उनको कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे थे. So, due to which it has caused land degradation due to overuse, dying aquifers and vanishing biodiversity, thus bringing the revolution of editing or genetic engineering, introduction of organic farming without uses of chemical fertilizers and pesticides. So basically जो globalization था, so at last what I would like to say that the impact of globalization which is on agriculture is that कि जैसे जैसे हमने अपने जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ते गए, हमने नई तरीके की चीज़ें मतलब इस्तेमाल करना शुरू की, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हमने डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा के एक नए फॉर्म ऑफ प्लांट्स तैयार करे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो नेचुरल प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा जल्दी सर्वाइव कर सकते थे, या फिर ज़्यादा इनपुट ज़्यादा आउटपुट दे सकते थे कम इनपुट के तौर पर. So that's all for this topic, and thank you very much.